Om. Om. Okay, Sairam children once again. Sairam. Sairam ma'am. Now, today we have to start the new chapter. हाँ Yes बेटा. ma'am. हाँ ओके. आज का मॉनिटर हमने किसको अपॉइंट किया था? मैम मानव. मैम मानव. अच्छा तो सिर्फ मानव माइक ऑन नहीं कर रहा, बाकी सब माइक ऑन करके बोल रहे हैं ना. ओके, ऑल ऑफ यू जस्ट मेक इट ऑफ, है ना, अपना माइक ऑफ करो. वी विल स्टार्ट टुडे न्यू चैप्टर. So I am going to present my screen. We will see the chapter and one by one you will read it. और मैं साथ साथ explain करती जाऊंगी. Okay? Just wait. It is coming. I am taking your book. Till then you people should be ready with your book and take out chapter. Which chapter we have to start today? 7. Ma'am, chapter. Ma'am, 7. Ma'am, getting to know plants. 7 chapter. Getting to know plants. Getting to know plants. Yes. Okay. That we will see. Where is the book? Here. प्रेजेंटिंग नहीं कर रहा. अभी बेटा प्रेजेंट करूंगी, पहले बुक आ तो जाए. लेट मी टेक इट. सम इशू इज देयर. लेट मी गेट इट अगेन. मैं फिर से एक बार देखती हूँ. चलो वीडियो दिखा देते हैं कोई, या तो फिर जस्ट वेट, आई विल शो यू द वीडियो. मुझे लग रहा है नेट थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है. नेट का प्रॉब्लम हो रहा है बेटा, तभी ना. अच्छा रुको. क्लास 6 साइंस चैप्टर कौन सा है हमारा? चैप्टर 7. Yes. Ma'am, getting to know our plants. So in this chapter we will study about plants and different types of plants you have seen around you. अब तुमने अपने आसपास कई तरह के plants देखे होंगे, देखे हैं ना? कुछ छोटे, Yes ma'am. Yes ma'am. कुछ बिना काटे. Yes. So that we will see. Okay. I will show you it. Now I am presenting my screen. Today हम थोड़ा सा वीडियो देखेंगे, फिर तुमको बुक से भी पढ़ाऊंगी, है ना? Okay मैम. बेटा बाकी लोग माइक ऑफ बिल्कुल स्ट्रिक्टली. Yes. So that quality of video will be more clear. Is it visible बेटा? Screen visible है? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. हाँ ओके. इसका ऑडियो ऑन करती हूँ मैं. Plants, insects, animals, and of course, the human beings. Every living thing is made up of different body parts, and each part has a specific task assigned to it. In this lesson, we will look at the parts of a plant body and understand their functions. Objectives. At the end of this lesson, you'll be able to identify different types of plants, list the parts of a plant, identify different types of roots, Is it list audible the properly functions of बेटा? roots, Yes understand ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am.
ठीक है We ठीक है. see different kinds of plants growing around us. They vary in their appearance. Some are short, while some others are tall. You should see the Some are picture tender, whereas carefully. some ध्यान से others देखो are hard. picture. In fact, plants can be classified into 3 categories as herbs, shrubs, or trees based on their characteristics. Plants are living organisms. Herbs, shrubs and क्या था तीसरा? Trees. Yes. So Trees. plants are categorized on this basis. Herbs, shrubs, है ना? And As trees. herbs, shrubs, or फोटो भी trees. ध्यान से देखो बेटा. हर्ब्स ये छोटे से जो प्लांट होते हैं, श्रब्स ये थोड़े जो और बड़े होते हैं, ट्रीज जो सबसे बड़े होते हैं, है ना? ऑन दिस 3 बेसिस 3 टाइप्स ऑफ प्लांट्स वी आर नोइंग. कैसे कैटेगराइज करते हैं उनको? हर्ब्स में, श्रब्स में और ट्रीज में. हाँ, अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे हम कि हम उनको क्लासिफाई कैसे करते हैं. ओके? हाँ, मैम जो shrubs हैं मैम वो झाड़ियाँ हैं. नहीं ऐसा जरूरी नहीं है. थोड़े टॉलर प्लांट है ना, हर्ब से थोड़े टॉलर, है ना? ठीक है. अभी और हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. हाँ, अभी और पढ़ते जाएंगे. अभी इसको देखो. Based on their characteristics. Plants are living organisms that make life possible on Earth. Plants provide fruits, vegetables, flowers, wood, and medicines. Different parts of different plants are used by human beings and animals for their existence. A plant body has 4 main parts: root, stem, leaves, and flowers. Yes, these are the different parts of a plant. That already you are knowing also कि किसको रूट बोलते हैं, किसको लीव्स बोलते हैं, किसको फ्लावर्स बोलते हैं, ये तुम लोग को पता है ना? तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. Yes. Each part performing a specific function. Let us look at the roots and stems in greater detail. Let us begin our discussion with plant roots. Root is the underground non-green part of a plant body. Roots absorb water and minerals from the soil, which are... Yes, you should see it carefully. देखो इसमें रूट क्या होती है, रूट के फंक्शन क्या है. Because every part of the plant have different function. जैसे हमारी बॉडी के भी हर पार्ट का डिफरेंट फंक्शन है. हमारी आईज देखने का काम करती है ना? और ईयर सुनने का काम करते हैं. हर बॉडी पार्ट का एक डिफरेंट फंक्शन होता है. वैसे ही प्लांट में भी प्लांट के हर बॉडी पार्ट का एक डिफरेंट फंक्शन होता है. तो हियर वी आर डिस्कसिंग द फंक्शन ऑफ रूट्स. Crucial for the survival of a plant. They also attach a plant to the soil for its entire life. Let us perform an activity to demonstrate the importance of roots in the life of a plant. Take 2 plants, A and B. Cut off the roots of plant B. Plant both the plants A and B in the soil and water them every day. After a few days, plant A appears as healthy as it was on the first day, whereas plant B appears wilted. This proves that roots absorb water and minerals from the soil and transport them to the other parts of the plant. वो है ना, इसलिए ऐसा भी बोलते हैं कि मैम फ्लावर के ऊपर पानी नहीं डालना चाहिए मैम, नीचे डालना चाहिए. फ्लावर के ऊपर पानी डालने से वो प्लांट तो मैम नीचे डालेंगे तो उसकी रूट्स बाहर ही निकल जाएगी. नहीं बेटा, ऐसे नहीं होता है. ध्यान से सुनो. ऐसा नहीं कि मैम फ्लावर पे हाँ बोलो. मैम रूट्स पे डालेंगे मैम तो अगर फ्लावर के ऊपर से डालेंगे तो मैम वो जो है मैम उसको पूरी पत्ती वत्ती टूटने लग जाएगी. बेटा फ्लावर के नीचे डालेंगे तो मैं वो जल्दी हुए. वेट मैम मैं बताऊं वेदांत? हाँ वेदांत. मैम मैं बोलूं? नहीं रुको, चैट बॉक्स में लिखा करो और मॉनिटर विल गिव द चांस, बिकॉज व्हेन आई शेयर द स्क्रीन आई डोंट गेट यू पीपल. तो इसलिए मॉनिटर को इसीलिए बनाया है. आप चैट बॉक्स में आई लिखो
मॉनिटर जिसका नाम लेगा वो अब बोलेगा, बाकी सारे बच्चे माइक ऑफ रखेंगे, क्योंकि अगर 2 माइक ऑन है तो आप क्या बोल रहे हो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। सो यू हैव टू कीप योर माइक ऑफ। मुझे पता है बेटा तुम बहुत होशियार बच्चे हो, तुम्हें आता है, समझ में आता है और डाउट्स भी पूछते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक एक करके बोलो। एक साथ सब बोलोगे तो ना तो नॉर्मल वे में भी नहीं सुनाई आता है। तो अभी तो हम ऑनलाइन मोड में हैं, फिर डिस्टरबेंस क्रिएट होता है ना। अब ध्यान से सुनो, ऐसा नहीं फ्लावर पे नहीं डालते बेटा, पानी डालने का भी, वाटरिंग का भी एक तरीका होता है। आप खूब एकदम बाल्टी भर पानी किसी भी छोटे से प्लांट पे डाल दोगे तो वो प्लांट मुरझा ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, जैसे तेज बारिश में हो जाता है। अब प्लांट पे पानी कहाँ सनलाइट भी चाहिए हाँ मैम, प्लांट को सनलाइट भी चाहिए। बिल्कुल सही। अभी हम अभी हम रूट की बात कर रहे हैं बेटा। यहाँ पे उन्होंने क्या शो किया, तुमने उस पे ध्यान नहीं दिया, तुम वाटरिंग पे चले गए। वाटरिंग होती उनकी बेटा, वो तो हम सॉइल की तरफ ही देते हैं, रूट पे नहीं जाता डायरेक्ट, हम सॉइल पे पानी देते हैं और सॉइल से वो सॉइल एब्जॉर्ब करती है और वाटर फिर वो रूट्स में जाता है। और रूट क्या करती है, रूट का क्या फंक्शन होता है, जो सॉइल में वाटर और मिनरल्स होते हैं वो रूट एब्जॉर्ब करती है और फिर वो किसको देती है, थ्रू स्टेम वो पूरे प्लांट को करती है। तो ये फंक्शन होता है। अब इस प्लांट की क्या हुई थी बेटा, कर्सर पे ध्यान देना, इस प्लांट की रूट कट गई थी, इसलिए ये आगे ग्रो नहीं कर पाया, और इसको रूट के समेत लगाया था इसलिए ये ग्रो कर गया, है ना। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ रूट। क्या करती है रूट प्लांट के लिए, कि सॉइल से मिनरल और वाटर एब्जॉर्ब करती है और वो पूरे प्लांट को पहुंचाती है। ये है रूट का फंक्शन। अभी आप ध्यान से देखो। Now try pulling the two plants out from the soil. Plant A is firmly attached to the soil because of its roots. So it is difficult to pull it out. However, plant B that has no roots comes out easily. This shows the roots anchor plants firmly in the soil. ये ध्यान से सुनो, रूट एंकर, रूट इज द एंकर ऑफ प्लांट। क्यों? क्योंकि रूट जो होती है वो प्लांट को सॉइल में पकड़ के रखती है, उसकी पकड़ बनाए रखती है, तभी तो प्लांट खड़ा हो पाता है। जो किसी भी प्लांट को तुम एकदम से निकालोगे बाहर तो तुरंत नहीं आएगा, क्योंकि जो उसकी रूट है, जो जड़ें हैं, वो मिट्टी में उसकी पकड़ बनाए रखती है। सो रूट होल्ड द प्लांट, है ना, इन द सॉइल। सॉइल के बाहर का जो है वहां पे रूट क्या करती है, रूट उसको पकड़ के रखती है, मतलब बेस है उस प्लांट की, ठीक है। सो दैट्स व्हाई रूट इज कॉल्ड द एंकर ऑफ द प्लांट। ये ध्यान रखना। एंकर क्या होता है मैम? एंकर क्या होता है? मैं बताती हूँ एंकर क्या होता है। जो बेटा तुमने कई बार देखा होगा, जो बड़े बड़े जहाज जो खड़े रहते हैं किनारों पे, तो उनको किनारों पे ऐसे एक एंकर जैसा बना के, जैसे ऊपर वी का निशान, एरो टाइप का होता है, वो एरो देखा है ना तुमने, एरो का निशान कैसा होता है, नीचे से कर्व रहता है मैम, उसके बीच से एक डंडी निकलती है। हाँ, उसको बोलते हैं एंकर। तो किनारों पे जब भी नाव को या शिप को बांधा जाता है ना, तो वो क्या करता है, उस शिप को या नाव को वहां पे रोक के रखता है, उसको बोलते हैं एंकर। या जैसे तुम सिंपली बोल सकते हो लग्गा, जो मतलब जैसे कई बार देखते हैं ना, फ्रूट वूट तोड़ने के लिए भी वो डंडे पे आगे एक वायर ऐसे फंसा के रखते हैं, तो उसमें पकड़ के वो फ्रूट टूटता है। ये उस टाइप से नहीं होता है, हालांकि ये मैंने जस्ट तुम्हें समझने के लिए एग्जांपल दिया। तो ये कैसा होता है बेटा, एरो टाइप का होता है एंकर, उसको बोलते हैं, जो कि शिप को या किसी भी चीज को पकड़ के रखता है ना। तो क्या होता है, पानी में वो नाव या वो शिप बहती नहीं है, उसको बोलते हैं हम एंकर। तो वैसे ही प्लांट के लिए कौन एंकर है, रूट एंकर है ना। रूट क्या करती है, उस प्लांट को मिट्टी में पकड़ के रखती है, थोड़ी मोड़ी बारिश से या इससे वो प्लांट टूट के निकल नहीं जाता है, बह नहीं जाता है, तो मिट्टी को पकड़ के रखती है। मैम दिव्य को डाउट। So of two types, tap roots and fibrous roots. Tap root is a single large root that Yes, you have to understand it. ये भी तुम्हारी बुक में है, चैप्टर आपको पढ़ना है। Types of root also you have to study. There are two types of root, tape root और fibrous root. अब इसमें क्या डिफरेंस होता है, टेप रूट में एक मेन रूट होती है
और उसकी साइड में बाकी छोटी छोटी रूट्स निकलती, यू कैन सी हियर, है ना, ये एक मेन रूट है और उसके मैम रूट तो नहीं होती रुको, मैम और भी होती है क्या मैम डाउट मैम और भी रूट होती है। बेटा रुको ना, मुझे बिल्कुल तुम्हारी क्लास में मजा नहीं आ रहा है। यू पीपल आर नॉट डिसिप्लिन्ड एट ऑल, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मुझे। मैंने अभी 4 बार तुम्हें समझा दिया जब कि जिसको डाउट है वो बोलेगा, सब नहीं बोलेंगे, तो भी तुम 2-2 3-3 बच्चे एक साथ माइक ऑन कर लेते हो बेटा। हाउ विल इट वर्क? एक किसी ने डाउट बोला तब तक दूसरा बोलने लग गया, उसका डाउट तो मुझे पूछ लेने दो, फिर कैसे क्लियर होगा? अब बताओ, तुम्हें बुरा लगेगा या नहीं? तुम डाउट पूछ रहे हो और कोई दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, बीच में बोल रहा है, हाउ विल यू फील? हाउ विल यू फील? मैम बैड बैड फील करोगे ना। फिर बेटा दूसरों को भी चांस देना चाहिए, है ना, हम 6th क्लास के बच्चे हैं। यस, अब पहले वो बोलेगा जिसने डाउट पूछा था। किसको डाउट है? मैम पहले दिव्य ने पूछा था। अच्छा दिव्य तुम बोलो। मैम जैसे अपन ने कैरेट को जो गाढ़ा हुआ तो उससे निकाला, लेकिन उसमें से मैम उसमें से रूट तो निकलती नहीं है। वो भी निकलती है बेटा साथ में, वो तो सब तुम्हारे पास जब आती है तो वो कट पिट के सब साफ होकर आता है, वैसे ही नहीं आ जाता है जैसे तुम उसको जमीन से निकालते हो, है ना। अच्छा, और सिर्फ कैरेट में नहीं होती है, ये तुम्हें फिगर देख के ऐसा उसमें लग रहा था वो वीडियो में, लेकिन सिर्फ कैरेट में ही टेप रूट नहीं होती। तुम बेटा मेन जो कॉन्सेप्ट है उसको मैम हाँ, अभी बीटरूट एंड ध्यान, रेडिश। किसका एग्जाम्पल दे रहे हो बेटा? ये रेडिश और बीट रूट किसका एग्जाम्पल है? मनस्व तुमने दिया था, बताओ किसका एग्जाम्पल है? मैम रूट प्लांट्स का। अरे बेटा मैंने तुमसे रूट प्लांट्स कब पूछे? अभी हम टाइप्स ऑफ रूट डिस्कस कर रहे हैं। तुम कहाँ पहुंच गए? तुम लोग मेन कॉन्सेप्ट से भटक जाते हो। पहले सुनो तो, जो चीज तुम पहली बार पढ़ रहे हो उसको पहले सुनो तो, बीच में नहीं बोलो, तुम नहीं सुन समझ पाओगे फिर, है ना। जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है उससे तो तुम अलग ही हो गए। हाँ वेदांश बोलो। मैम मैम आपने तो कहा कि केवल मैम 2 रूट्स होते हैं। मैम मैम मेरी एक बुक है मैम, उसमें बहुत सी रूट्स दी हुई है। अरे बेटा मैंने 2 रूट्स नहीं कहा, मैंने कहा 2 टाइप्स ऑफ रूट्स। लिसन केयरफुली, मैंने कहा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट, एक होता है फाइब्रस रूट, एक होता है टेप रूट। अभी हम टेप रूट को डिस्कस कर रहे थे। तो टेप रूट में क्या होता है, किस टाइप की होती है? एक सिंगल मेन रूट होती है और उसके दोनों तरफ कुछ छोटी छोटी रूट्स निकली होती है, लेकिन उसमें एक मेन रूट जरूर होती है, दैट इज नोन एज टेप रूट। और दूसरी जो फाइब्रस रूट होती है, फाइब्रस में ऐसे 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 अलग अलग रूट, छोटी 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 रूट्स निकली रहेगी, वहां कोई भी एक मेन रूट नहीं दिखेगी तुम्हें। टेप रूट में एक मेन रूट दिखेगी जिसके दोनों तरफ, मेरे हाथ पे भी ध्यान दो, इधर से और इधर से, इधर से और इधर से, इधर से इधर से, इस तरह से छोटी छोटी रूट्स निकली रहेगी, बट वन मेन रूट विल बी देयर, वो होती है टेप रूट। और फाइब्रस रूट में बस ऐसे ऐसे दोनों तरफ रूट्स निकली होगी, वहां कोई भी मेन रूट नहीं है। क्लियर है? यस मैम। अब तुम ध्यान से देखना, अब वीडियो पहले ध्यान से देख लो, उसके बाद में बोलना। तुम पहले पूरी बात देखते सुनते नहीं हो, बीच में ही बोल पड़ते हो। नाउ वॉच इट। It grows straight down deep into the soil. अब मैं इसको थोड़ा बैक से स्टार्ट कर A रही हूँ few ताकि small तुम लोग, roots that branch from it are called lateral roots. For example, root जस्ट वेट, रूट के फंक्शन से पहले हम देखेंगे, 1 मिनट। कैमरा ऑफ करने से क्या होता है, वीडियो की क्वालिटी अच्छी आती है, ऑडिबल प्रॉपरली होता है। हाँ यस, नाउ आई एम शेयरिंग इट, नाउ वॉच इट केयरफुली, ध्यान से देखेंगे सब। roots absorb water and minerals from the soil, which are crucial for the survival of a plant. They also attach a plant to the soil for its entire life. Let us perform an activity to demonstrate the importance of roots in the life of a plant. Take 2 plants, A and B.
Cut off the roots of plant B. Plant both the plants A and B. हाँ, अब यहाँ भी ध्यान से देखना कि उसमें बता क्या रहे हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ रूट बता रहे हैं. Soil and water them every day. After a few days, plant A appears as healthy as it was on the first day, whereas plant B appears wilted. This proves that roots absorb water and minerals from the soil and transport them to the other parts of the plant. Now try pulling the two plants out from the soil. Plant A is firmly attached to the soil because of its roots. प्लांट ए निकल नहीं रहा है So it एकदम is से, difficult जबकि to प्लांट pull it बी out. जल्दी निकल जाएगा. However, plant B that has no roots comes out easily. This shows the roots anchor plants firmly in the soil. Roots are of two types: tap roots and fibrous roots. Tap root अब ध्यान से सुनो. ऑफ रूट, एक होती है टेप रूट और दूसरा नाम होता है फाइब्रस रूट. ये यहाँ देखो कर्सर पे. कर्सर इज विजिबल टू यू? Yes, ma'am. यस मैम. ये एक, सबसे पहले तो इसको गाजर समझना बंद करो. भले ये गाजर का ही, कैरेट का ही एग्जाम्पल है, लेकिन उसको वो समझ, ये ऐसी एक मेन रूट होती है और साइड में ये ऐसी दूसरी रूट्स निकली हुई होती है, बट वन मेन रूट इज देयर. दिस इज नोन एज टेप रूट. इस टाइप की जो रूट होती है उसको टेप रूट बोलते हैं बेटा. और दूसरी होती है फाइब्रस रूट. तो उसमें ये जो मेन रूट है ये नहीं दिखेगी, बस ऐसे दोनों साइड पे तुमको रूट्स दिखेगी, मेन रूट वहां नहीं होगी. अभी तुम आगे देखोगे. अब ध्यान से देखना वीडियो. is a single large root that grows straight down deep into the soil. A few small roots that branch from it are called lateral roots. For example, ये जो स्मॉल रूट्स दिख रही है इसके साइड में, मेन रूट के साइड में, ये है मेन रूट, और इसके साइड में जो निकल रही है इनको बोलते हैं लेटरल रूट्स. क्या बोलते हैं? ये छोटी छोटी जो दोनों तरफ निकलती है रूट के, लेटरल रूट. बोलेंगे मेन रूट. हाँ, लेटरल रूट है ना. और ये है मेन रूट, इसके साइड में जो निकलती है वो लेटरल रूट. और ये कौन से टाइप के एग्जाम्पल है? टेप रूट का एग्जाम्पल है. Tap root. roots found in radish and carrot plants. Fibrous roots, on the other hand, are a cluster of fine roots that spread into the soil. But यस, अब इसमें देखो ध्यान से, ये फाइब्रस रूट का एग्जांपल है. इसमें तुम्हें कोई मेन रूट दिख रही है क्या? नहीं है. No, ma'am. इसमें दोनों तरफ छोटी छोटी ऐसी रूट्स निकली हुई हैं. तो इसका नाम क्या है? इस टाइप की जो रूट होती है उसको क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट. हाँ, तो तुम ऐसे एग्जाम्पल देख सकते हो. अब बेटा कभी अपनी ऑफलाइन क्लास होती तो मैं कुछ बच्चों से प्लांट मंगवा के तुम्हें वैसा दिखा भी देती, लेकिन अभी तुम इसमें भी देख के समझ सकते हो. रेडिश में जैसे तुमने देखा, कैरेट में देखा कि एक मेन रूट थी और उसकी साइड में दोनों तरफ अलग अलग रूट्स निकली थी, है ना. और वो जो छोटी छोटी अलग अलग निकली थी उनको लेटरल रूट बोलते हैं, और एक जो बीच में थी वो मेन रूट थी. लेकिन फाइब्रस रूट में ऐसा नहीं है, दोनों तरफ एक जैसी रूट्स निकली हुई है. देयर इज नो मेन रूट. इसको बोलते हैं फाइब्रस रूट. for example, roots found in maize and wheat crops. A fibrous root has no main root. Drag and drop the correct options into their respective boxes. The other important part of the plant body is the stem. The stem forms the main axis of the plant body, which grows towards light and away from gravity. It holds the plant body upright. It bears leaves, flowers, and fruits, and exposes them to sunlight and air. The stem is divided into nodes and internodes. Nodes are the swollen portion of the plant that holds buds which grow into leaves, flowers, etc. Internodes, on the other hand, are the stretches between two nodes.
Roots, as you learned, absorb water and minerals from the soil. You can see कैसे जा रहा How है does the वो. water and minerals absorbed by the roots reach the rest of the plant body? Yes, through the stem. The stem conducts them to the leaves and other parts of the plant. It also supports the plant, enabling it to stand erect. Besides, it exposes its leaves to the sunlight. Let us perform an activity to demonstrate that stem conducts water. Take a What is the function of stem? Stem conducts water. जो रूट से है, यहाँ से रूट ने यहाँ तक पहुंचा दिया स्टेम तक, अब स्टेम आगे पूरे प्लांट में पहुंचाता है उसको. A balsam plant with roots. Put it in a pot containing colored liquid. After a while you will observe. हाँ, ये एक्टिविटी भी मैं तुमसे करवाती. अभी मैं तुम्हें और बताऊंगी तो तुम लोग करना फिर, ठीक है? We will see it. Presenting off हो गई. प्रेजेंटिंग स्टॉप हो गई. मैम प्रेजेंटिंग मैंने की है बेटा, मैंने की है स्क्रीन ऑफ. मुझे उसके आगे का अभी तुम्हें उस वीडियो में नहीं बताना है. अभी मुझे तुमसे डिस्कस करना है कि हमने क्या क्या पढ़ा अभी. उसके आगे का हम बाद में देखेंगे क्योंकि एक ही क्लास में सब पढ़ लिया. मैम मनस्वा को डाउट था. क्या डाउट था मनस्व? मैम जो बीटरूट है मैम वो उसके टैप रूट रहते हैं कि मैम फाइब्रस रूट? बीट रूट में मेन रूट रहती है क्या बेटा? अगर मेन रूट है तो वो टेप रूट है. अगर मेन रूट उसमें नहीं है, दोनों तरफ रूट्स निकली है, तो वो कैसी रूट है? फाइब्रस रूट है. फाइब्रस रूट है. अगर मेन रूट है उसमें तो वो टेप रूट है. अगर दोनों तरफ रूट्स निकली है, देयर इज नो मेन रूट, तो वो फाइब्रस रूट है. ठीक है? हाँ, अब बोलो आगे. ओके, नाउ यू आंसर मी. अब मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ. हमने आज क्या क्या डिस्कस किया, कितना देखा. ओके तन्मय, व्हाट डिड वी डिस्कस? तन्मय को नींद आने लगी. बेटा अभी तो एक क्लास और होगी ना आगे. नो मैम, सुबह हो गई थी. अच्छा, तो की क्लास है. ओके, ठीक है. हाँ तन्मय, सोना पड़ता है. अच्छा क्यों सोना पड़ता है? मैम जब पता है जब सोना होता है मैं तो नहीं सोता. मैम जब सोना होता है तो नींद नहीं आती, और जब नहीं सोना होता है ना तो बहुत देर नींद आती है. हाँ, एग्जाम टाइम में बहुत आती होगी ना नींद. मैं तो दोपहर में कभी नहीं सोता. जैसे हमारा एग्जाम खत्म हो सीधे चले जाए हम घर में, क्योंकि बोर हो जाते हैं फिर बैठे बैठे. वेरी गुड. चलो ठीक है. हाँ तन्मय, बताओ क्या क्या सीखा हमने आज. मैम यहाँ पर वीडियो में बताया कि 3 टाइप्स के प्लांट होते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं वो कई तरह से लगाए जाते हैं जमीन में. जैसे उसमें एक एग्जांपल देके बताया था कि 2 फ्लावर्स थे, तो फ्लावर्स में एक फ्लावर की रूट ही नहीं थी, उसको तब भी डेली पानी देते, फिर भी वो मुरझा गया क्योंकि उसके पास रूट नहीं थी. वेट तन्मय, जिसमें रूट ही नहीं है वो प्लांट कैसे लगेगा? वो लगेगा ही नहीं, वो मुरझाया ही इसीलिए क्योंकि उसमें रूट नहीं थी. रूट नहीं थी तो इसलिए वो सॉइल से जो उसको वाटर और मिनरल मिलना चाहिए थे वो मिल ही नहीं पाए, तो वो प्लांट कैसे लगेगा? प्लांट वही लगेगा. न्यू लगाते हैं तो फिर वो लग जाता है, फिर थोड़े दिन बाद अपने आप हो जाता है. क्या मैम न्यू प्लांट? बेटा वो रोज वगैरह उसकी कलम लगाते, वो अलग चीज होती है. लेकिन यहाँ पे हम रूट का इम्पोर्टेंस समझ रहे थे, तो यहाँ पे हम उसी प्लांट की बात कर रहे थे जिसको रूट से ही लगाते हैं ना. या जो अगर सीड्स भी लगाएंगे तो उसके बाद में जब अंदर ही अंदर उसमें रूट बनती है, जब बिना रूट के कोई भी प्लांट फिर होल्ड नहीं कर पाएगा, है ना. तो रूट इज एंकर ऑफ द प्लांट. मैम बहुत से प्लांट्स में तो रूट रहते हैं मैम, तब भी उन्हें सहारा चाहिए होता है. हाँ, क्योंकि वो वीक होते हैं. अब वो कुछ चीजें सॉइल के अंदर उनको कौन पकड़ के रखता है प्लांट को? रूट. लेकिन सॉइल के बाहर की साइड उसको कौन पकड़ के रखता है? स्टेम. तना.
अब तुमने देखा होगा अलग अलग प्लांट्स के स्टेम भी अलग अलग होते हैं, उसके बेस पे भी अभी हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे आगे। लाइक उसमें क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, ये सारा भी इसमें आएगा। क्रीपर्स मतलब जो जमीन पे फैलते हैं, लाइक पंपकिन, है ना, और क्लाइंबर्स मतलब बेल जो लाइक मनी प्लांट। हाँ, तो जो ऊपर की तरफ फैलती है सपोर्ट के साथ में वो क्लाइंबर, वो जो नीचे जमीन पे फैलती है। मैम उनके बिल्कुल, मैम मनी प्लांट का बिल्कुल पीपल के पेड़ जैसे पत्ते होते हैं। पत्ते वैसे होते हैं, लेकिन वो क्लाइंबर नो कौन? जो मैं मनी प्लांट क्लाइंबर है ना, मनी प्लांट। हाँ, मनी प्लांट क्लाइंबर है। मैम वाटरमेलन का प्लांट वो क्रीपर है। अब क्रीपर मीन्स जो जमीन पे, क्योंकि अगर वाटरमेलन या पंपकिन इनके प्लांट को तुमने सपोर्ट दे भी दिया तो इनका फ्रूट इतना हेवी है कि जो उसका प्लांट है वो उसका वेट कैरी नहीं कर सकता है ना। उसको सपोर्ट से ऊपर चढ़ाओगे तो एक पंपकिन ही कितना हेवी होता है, एक वाटरमेलन ही कितना हेवी होता है, तो वो ऊपर की तरफ ग्रो नहीं कर सकते, वो जमीन पे ही आगे बढ़ते हैं, है ना। तो दैट टाइप ऑफ प्लांट आर नोन एज क्रीपर्स। तो क्लाइंबर्स और क्रीपर। और आगे हम पढ़ेंगे, अभी एक साथ सब नहीं पढ़ो, नहीं तुम कंफ्यूज हो जाओगे। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम और डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ प्रणव, बोलो डाउट। मैम बरगद का पेड़ कभी मरता नहीं है? नहीं, वो उसकी जड़ें और नीचे जाती जाती है और नई जड़ें लगती जाती है और बनता जाता है ना, न्यू प्लांट आता जाता है। मैम पर आपने तो बोला था आज आप बुक भी खोलोगे। पर अभी वीडियो में इतना टाइम हो गया, तुम लोगों ने वीडियो में इतने तुम्हें डाउट आए और तुम लोगों ने क्लास में थोड़ा सा डिस्टरबेंस भी क्रिएट किया ना, तो उसमें अपना टाइम चला गया। अब अभी तो टाइम बचा नहीं है आज की क्लास का, तो अब बुक का मैं नेक्स्ट इसमें बताऊंगी, बिकॉज ऑलरेडी इट इज 2:40 ऑलमोस्ट, है ना। मैम तो अभी तुम अब आज लोग क्या करना कि बुक का ये चैप्टर पढ़ना, मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों से फिर पूछूंगी। हम बुक से फिर तुम लोगों से रीडिंग भी करवाएंगे और साथ साथ में मैम एक्सप्लेन भी करूंगी। मैम लेकिन टाइम तो 2:45 का है ना? अरे बेटा, सेट कर दिया था मैंने। बताया तो 2:40 का टाइम नहीं होता, इसलिए 2:45 करना रहता है। हाँ, उसको हम कर भी सकते हैं, हम उसको एडिट कर सकते हैं बेटा, लेकिन अभी मैंने तुम्हें क्योंकि तुरंत दूसरा मेल भेजा ना, वो मेल तुम्हारे पास आया ही नहीं, मुझे पता चला, तो मैंने इसलिए उसको एडिट नहीं किया। और बेटा 2:40 पढ़े या 2:45 पढ़े, इट डजेंट मैटर एट ऑल। 5 मिनट ज्यादा पढ़ लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, और 5 मिनट कम पढ़ लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी हम 10 मिनट भी ज्यादा पढ़ लेते हैं। अब अभी क्या है, क्योंकि फिर से बुक शेयर करने में पूरा स्टार्टिंग से मुझे सारा ऑन करना पड़ेगा, तो इट विल बी डिफिकल्ट, है ना। और अभी जो आज जो हमको पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया है। अब तुम्हारे इसमें जब आएगा ये सारी चीजें चैप्टर में जब आएंगी तब मैं तुमसे पूछूंगी ये सारा, ओके। यू पीपल हैव टू बी प्रिपेयर। टाइप्स ऑफ रूट, ओके मैम। मैम इस बार आप क्वेश्चन आंसर पूछना। मैम जो लेटरल रूट है मैम वो भी टाइप ऑफ रूट में ही आती है? वो सब पार्ट है उसका। टाइप ऑफ रूट केवल 2 है, टेप रूट और फाइब्रस रूट। लेटरल रूट जो है वो टेप रूट का एक पार्ट है, ठीक है। ओके ओके मैम। हाँ मैम तो नाउ हाँ बोलो बेटा। ये वाली भी मैम क्रीपर प्लांट को मैम अपन ऐसे सीधे में टांगेंगे तो मैम वो मैम जब उसके पंपकिन या वाटरमेलन उगेंगे तो मैम वो वजन के मारे नीचे करके फूट जाएंगे। हाँ, इसीलिए वो जमीन पर ही पड़ती है, ठीक है। हाँ वेदांश बोलो। मैम ये वाली भी टाइप्स ऑफ रूट में आती है। रूट्स जो मैं बोल रहा हूँ मैम, इसमें लिखा था एडवेंचरस रूट, एरियल रूट एंड क्रॉप रूट। मैम ये सारी भी टाइप्स ऑफ रूट में आती है। हाँ, ये उन्हीं के सब पार्ट्स है ना। तुम्हें अलग अलग बुक में अलग अलग और डिटेल में मिलेगा, लेकिन 6th के स्टैंडर्ड पे अभी तुम्हें उतने हाई लेवल पे उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है ना। अभी सिर्फ तुम्हें इतना समझना है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट, टेप रूट और फाइबर्स रूट। हाँ, ठीक है। अच्छा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव जॉइन टुडे? अभी का 120 हो गए। We are concluding today's class. I have seen 24, so that's why I was asking. क्योंकि अभी मैं 21 देख सकती हूँ। Okay, now we are concluding today's class with Shanti part. All of you just read the chapter,
है ना. और now all of you just join your hands, close your eyes. Om Shanti Shanti Shanti. Okay, Sairam children, take care of yourself. Bye. Sairam ma'am, thank you ma'am. Sairam, Thank you, ma'am. Sairam, ma'am. Sairam. सब chapter. Sairam, ma'am. Can we leave? Yes, you can leave.